ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ مرید کے نواحی گاؤں ڈالا بھاگا فیکٹری میں بوائلر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بھاگ جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فیکٹری میں پرانے ٹائر جلا کر تیل نکالا جا رہا تھا، جس کے دوران یہ دھماکہ ہوا۔ سیالکوٹ میں پولیس کی تمام تر کاوشوں کے باوجود جرائم کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے جرائم کی شرح میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام بالا اور حکومت سے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے اور جرائم کی شرح میں اضافے کی وجوہات سمیت جرائم پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کی تجاویز پیش کرتی ہیں۔ کی ضرورت ہے اور انہیں اپنے جیسا کہ 24 گھنٹے جو بندہ ڈیوٹی کرے وہ کیا کرے گا بیچارہ، انہیں ریسٹ ملنا چاہیے، انہیں اعلیٰ اچھے قسم کے آلات ملنے چاہیے، انہیں جدید ٹیکنالوجی ملنی چاہیے تاکہ وہ جرائم کو قابو پا سکے۔ سیالکوٹ میں کرائم ریٹ کی بڑھتی ہوئی شرح جو ہے اس کی ناگزیر وجوہات صرف اور صرف بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ دنیا میں سارے ان کے پاس آلات موجود ہیں، بائیو میٹرک سسٹم موجود ہے، یہاں بھی چاہیے کہ سیالکوٹ میں خاص طور پہ ہم تو سیالکوٹ کی بات کریں گے، ہم سیالکوٹ میں کرائم ریٹ کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا میرا گیا اکیڈمی پڑھنے کے لیے، تو وہ اکیڈمی کے بعد اس نے بائک کھڑی کیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا تو بائک وہاں سے غائب تھی۔ شکرگڑھ صرافہ بازار میں ڈکیتی کی واردات۔ شکرگڑھ صرافہ بازار میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ چور سونار کی دکان سے سونا چاندی اور نقدی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ متاثرہ دکاندار کے مطابق چور 1.5 کروڑ سے زائد کی مالیت کا سامان لے گئے ہیں۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بھیرا میں ملزمان کی جانب سے کار پر فائرنگ کے نتیجے میں سابق SSP کا گن مین جاں بحق، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہونے والوں کی مخبری کے شبے میں بڑھیکا گروپ کی تھانہ میانی کی حدود میں کار پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں سابق SSH میانی مہر شاہد ہرال کا گن مین جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ تھانہ میانی پولیس نے FIR درج کر کے ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ 18 ہزاری کے پولیس اہلکاروں کو مچھلی کھانے کے لیے ہیڈ تریمو کے مقام پر گاڑی روکنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت پیشی سے آنے والا ملزم فرار ہو گیا۔ تھانہ 18 ہزاری کے افسران بھی مچھلی کھانے کے شوقین نکلے۔ ملزم کو عدالت پیشی سے واپس تھانہ 18 ہزاری لایا جا رہا تھا کہ مچھلی کھانے کے لیے پولیس اہلکاروں نے ہیڈ تریمو براج پر ملزم کو پیشی سے واپس لے جانے والی گاڑی کو روکا۔ مچھلی کھانے کے دوران ملزم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا، جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس اسٹیشن تھانہ 18 ہزاری نے گرفتاری کی FIR درج کر لی۔ رحیم یار خان میں پولیس نے کچے کے علاقے میں کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، جس کے دوران 3 مغوی بحفاظت بازیاب ہو گئے۔ بازیاب ہونے والوں میں اکرم، موسیٰ اور محمد سرور شامل ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران تینوں مغویوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب اغوا کار مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ آپریشن ڈاکوؤں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر تھانہ بنگلہ اچھارہ جنپور کے سرحدی علاقے میں کیا گیا۔ پولیس کی مؤثر کارروائی کے باعث اغوا کار مغویوں کو چھوڑ کر کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے، جس میں نائٹ ویژن، گگلز، ایلیٹ کمانڈوز اور بھاری ہتھیاروں کی مدد لی گئی۔ تینوں مغوی چند روز قبل کوٹ کرم خان اور تھانہ آباد پور کی حدود سے اغوا ہوئے تھے۔ آپریشن کی نگرانی DSP صدر سرکل نے کی۔ CIA انچارج صدر سرکل سب انسپکٹر سلیم درگ سمیت پولیس کے بھاری نفری نے حصہ لیا۔ 16 دسمبر سانحہ پشاور کے موقع پر جنگ پولیس کا قابل ستائش اقدام۔ شہدائے پولیس کے اہل خانہ کے لیے خصوصی رہائشی منصوبہ شہداء کالونی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ DPO کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی نے SP انویسٹیگیشن جاوید اقبال چدھڑ اور خرم شہزاد ADCG کے ہمراہ شہداء کالونی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور، ممبران امن کمیٹی، سول سوسائٹی اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ DPO کا کہنا تھا کہ شہداء کے خاندانوں کی ویلفیئر ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہداء کالونی کی تعمیراتی کام کو پائیداری اور معیار کے ساتھ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بچوں اور اساتذہ نے شرکت کی۔ دیکھیں گے ملتان سے دلزیب آکاش کی رپورٹ۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 10 سال مکمل ہونے پر ملتان کے گورنمنٹ پائلٹ اسکول میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی۔ تقریب میں طلبہ و اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ سانحہ APS دل خراش واقعہ تھا، اس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج 16 دسمبر 2024 ہے اور یہ 2014
16 दिसंबर को ये सान्या हुआ था। गमगीन यादें आज भी ताज़ा हैं, हम उन वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। 10 साल बाद APS के नन्हे शुहदा की यादें ताज़ा हैं, हम इनके वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। आज के दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पर हम दहशतगर्दों ने हमला करके हमारे भाइयों हमारे दोस्तों को शहीद किया था और आज हम उनके लिए दुआ गो हैं। तलबा का कहना था कि दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर साबित किया कि वो कितने सफाक हैं। तलबा और असातिज़ा ने मुतालबा किया कि पुरअमन माहौल और तरक्की के लिए मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। आरिफाला के नवाही इलाके 51 SP में स्कूल बस उलट गई, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। आरिफाला के नवाही इलाके 51 SP की निजी स्कूल की बस रिंग शाह के करीब मोड़ काटते हुए अचानक उलट गई। हादसे के नतीजे में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक बस स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी तो हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी बच्चों को इब्तदाई इमदाद फराहम की और फिर उन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफाला मुंतकिल कर दिया। सराय आलमगीर की रिहायशी मजलूम खातून और उसकी 4 बेटियां इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बासर अफराद ने घरेलू खातून और बेटियों को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। सराय आलमगीर के नवाही इलाका कोटिया की रिहायशी मजलूम खातून ने मीडिया को बताया कि बासर अफराद ने उसे और उसकी बेटियों को घर के दरवाजे पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे और उसकी बेटियों समेत तीनों को लोहे की रॉड और डंडों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन नामजद मुल्जिमान में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि बासर अफराद की तरफ से मुकदमे से दस्तबरदार होने और सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मजलूम खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DPO गुजरात से दादरसी की अपील की है। बच्चियां ने 11वें महीने की 13 तरीक से असी नादरा दफ्तर जा रहे हैं। साढ़े दरवाजे के अगे मेरी बच्ची बाइक चलाती है, असी मोटरसाइकिल से बहन लगे हाँ। इन्होंने आन के मनीर, तनवीर, तमीना बीबी ने विच कुछ नामलूम बंदे ने इन्हें आके साढ़े ते हमला किया है। मनीर दे हत्थ विच लोहे दा पाइप सी, तनवीर दे च डंडा सी, तमीना बीबी दे हत्थ विच डंडा सी। इन्हां ने बहुत ज़्यादा साढ़े नाल जुल्म ज़्यादती की है। मेरियां बच्चियां नूं जख्मी किया है, मेरियां 3 बच्चियां नूं मारिया ने। उम्मे कलसूम, जैनब बीबी जिहड़ियां कि स्कूल पढ़दियां ने, एक मरियम बीबी, इन्हां बहुत जुल्म किया, ज़्यादती की है साढ़े नाल। असीं हस्पताल पहुंचे हाँ, उत्थे इन्हां डॉक्टरां नाल मिल जुल के साडा नतीजे कुछ नहीं लए। उस तो बाद साडी मैडिकल रिपोर्ट जिहड़ी है वो भी इन्हां नील करवाई है। गुजरावाला महकमा सोई गैस की जानिब से शहरों गिरदरवा में लोड शेडिंग और कंप्रेशर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस में मुश्किलात ये है कि सुबह बच्चे भूखे जाते हैं, हम भी बगैर नाश्ते के आते हैं, काम पे आना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, LPG लेने जाएं वो इतनी महंगी है। गैस आउंदी कोई नहीं है ते एडी महंगी ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ एडी महंगी है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗੈਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਗੈਸ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਮਸਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਦਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ नहीं करवाईदा, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ है। टोबा टेक सिंह में रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता डीलर्स डेवलपर्स ने FBR, तहसील और रजिस्ट्री दफातर, कमीशन के लेन देन समेत दरपेश आए रोज के थाने कचहरियों के मसाइल से तंग मामलात पर सर जोड़ लिए। मजीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता डीलर्स, कंसल्टेंट्स और डेवलपर्स की बड़ी तादाद FBR, तहसील और रजिस्ट्री दफातर, कमीशन के लेन देन समेत दरपेश आए रोज के थाने कचहरियों के मसाइल से तंग मामलात पर रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन का निजी हॉल में मलिक मोहम्मद तारिक, नईम गेल और अबैदुल्ला कालों की सरबराही में बड़ा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें दरपेश मसाइल से छुटकारे पर गौर खौज किया गया। इस मौका पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे जो मसाइल हैं उसका हल नहीं हो पा रहा था। अभी आपको भी अंदाज़ा है कि 2-2.5 साल से गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, हमारे प्रॉपर्टी का जो काम है वो सारा डिस्टर्ब हुआ है। लाखों लोग हमारे इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं, तो हम बार बार गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। आज भी ये कट करने का मकसद यही था। रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलिक मोहम्मद तारिक ने शुरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, इन्हें प्रॉपर्टी डीलर्स और कंसल्टेंट्स के मसाइल का बखूबी इल्म है और वो इनके मसाइल के मौसर हल के लिए भरपूर कोशां हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स और कंसल्टेंट्स को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन के नए इंतखाबात के लिए SOPs वज़ा करने के लिए इजलास में इत्तफाक राय से 12 रुकनी कमेटी तश्कील
तफसील दी गई है, जो क़ायद ज़वाबत वज़ा करके फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान और अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टिक्सिंग। कसूर लाखों की आबादी वाले शहर का इकलौता पार्क इंतजामी के अदम दिलचस्पी के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम, जबकि कसूर गार्डन में आवारा कुत्तों की भी भरमार है। इसी हवाले से मियां काशिफ की रिपोर्ट देखिए। कसूर में म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और इंतजामिया की नाअहली या लापरवाही लाखों की आबादी के लिए बनाया जाने वाला पार्क खस्ता हाली का शिकार। पार्क की खूबसूरती के लिए बनाई गई झील अरसा दराज से बंद, जबकि पार्क के मेन गेट्स पर सिक्योरिटी एहलकार तक मौजूद नहीं, जबकि अरसा दराज से CCTV कैमरे भी चोरी हो गए। पार्क में वॉशरूम तो बनाए गए मगर इंतजामिया की जानब से इनको भी ताले लगा दिए गए, जबकि पार्क में आवारा कुत्ते भी लाइनें बनाकर मटर गश्त करने लगे। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि पिछले 20 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इससे बदतर पार्क की हालत हमने नहीं देखी। कि मतलब मुझे दरख्तों और पौधों को देख के लगता है कि सदियों से इनको कोई पानी नहीं दिया गया, कोई किसी किस्म के इंतजाम नहीं है, कंटीन बंद है, कोई गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी ज़माने में कैमरे भी थे, लेकिन अभी कैमरे तो दूर की बात है, लाइटें तक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरे पार्क में किसी साइड पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है, इवन के जो डेवलपमेंट थी वो भी ख़राब हो चुकी हुई है। रोज़ाना कसूर गार्डन में सैर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, ग्राउंडें सूखी हुई हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं है, वाशरूम बंद है। यहाँ पे कुत्ते भी आवारा गर्दी कर रहे हैं। चाहे 3 गेट हैं, 3 गेटों पे सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है। पार्क में जो झील है वो भी सूखी पड़ी है, वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ से रेवेन्यू आता था लेकिन वो भी अब नहीं आ रहा। लेकिन इंतज़ामिया से अपील है कि वो कश्तियाँ उसमें चलाएं, पानी छोड़े, ताकि कोई रेवेन्यू भी आए और पार्क की खूबसूरती है जो वो भी खूबसूरत लगे। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लें और शहर के इकलौते गार्डन की हालत ज़ार को बेहतर किया जाए ताकि शहरी तफरीही मकाम से लुत्फ़ अंदोज हो सकें। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। सर्दी की शिद्दत के साथ ही मंडी बहाउद्दीन में मुतवस्सित दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश तबके ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों से बेजार होकर तन बदन ढांपने के लिए छोटी शॉप्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानेंगे अफजाल हुसैन वड़ाइश की रिपोर्ट में। जी शुक्रिया। अगर बात करें इस वक्त सर्दी की शिद्दत के हवाले से, तो इस वक्त सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है, उसी तरह इस वक्त बूट्स और शूज़ की जो शॉप्स हैं वहाँ पे इस वक्त रश होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के एक शूज़ पे। यहाँ पर बूट्स खूबसूरत और दिलफरेब डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा बूट्स है और मुतवस्सित दिहाड़ीदार सफ़ेद वो जो तबका है वो मार्केटों में जाने, शॉपिंग मॉल में जाने की बजाय। अच्छा, आप ये बताएं कि जो मार्केट और जहाँ का कितना फ़र्क है, मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है और आपके पास जो लोग आते हैं मुतवस्सित दिहाड़ीदार सफ़ेद वो तनख्वाहदार तबका है वो कैसे आते हैं और कितने रेट में आपको जूता देते हैं? सर इस तरह जिस तरह महंगाई में जो मार्केट में रेट चलते हैं ना, वो काफ़ी महंगा है। जो उधर 3500-4000 का जूती मिलता है, हम उनको 1800-2000 का दे देते हैं। पिछले साल हमारे साथ बहुत काफ़ी रश होता था, इस साल महंगाई की वजह से रश थोड़ा कम हुआ है। हमारे पास सर ज़्यादा लोग वो आते हैं जो गरीब दिहाड़ी लगाने वाले हैं लोग। जी बिल्कुल, उनका कह रहा था कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई की वजह से हमारे पास रश कम है और यहाँ पर मुतवस्सित दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश तबका आकर अपना तन बदन ढांपने के लिए यहाँ पर आकर शॉपिंग कर लेता है। जी। खानका डोगरा से अड्डा वर्कशॉप तक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है रात को इस रोड पर सफ़र करना किसी खतरे से खाली नहीं। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खानका डोगरा लाहौर सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और इस पर हैवी ट्रांसपोर्ट चलती है। रात के वक्त तो यहाँ पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े डंपर चलते हैं और इन पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनमें से तो ज़्यादातर जो कम सन ड्राइवर होते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो हादसा का भी सबब बनते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इस रोड पर रोज़ाना सफ़र करते हैं। उनसे पूछते हैं कि अब इनका मसला क्या है और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या मामला है, आपका हाल कैसा है? सर ये आपके सामने ही है। हम डेली यहाँ से मजदूरी करने के लिए खानका डोगरा से पिंडी भट्टियाँ तक जाते हैं और पिंडी भट्टियाँ से लेके इधर वापस हम जब आते हैं तो हमारे घर वाले भी हमको पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये हाल आपके सामने ही है आपके। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों को गम और गुस्सा देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये रोड अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार है। हमारे वोटों से इक़्तिदार के ऐवानों में जाने वाले जो हमारे यहाँ पर उम्मीदवार होते हैं, लेकिन वो कई बार इस रोड को बनाने के वादे तो करते हैं लेकिन रोड ये आज तक नहीं बना। खानका डोगरा में जो लाहौर सरगोदा रोड है, अड्डा वर्कशॉप से लेकर खानका डोगरा तक, यहाँ पर इसको कारपेट तमीर फौरी की जाए और इसके अलावा यहाँ पर जो हैवी ट्रांसपोर्ट रात को चलती है उनके ड्राइवरों के लाइसेंस भी चेक किए जाएँ। जी
शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के आगाज़ के बाद पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौके पर CEO, हेल्थ अथॉरिटी, MSDHQ अस्पताल और दीगर ज़िला अफसरान भी मौजूद थे। ज़िला भर में पोलियो मुहिम 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी तरजीह है। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 2929 मोबाइल टीमें घर घर जाकर काम करेंगी। इसके अलावा 7,58,490 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जिला भर में 55 ट्रांसिट कैंपस कायम किए गए हैं। मोड़खंडा अजला नानकाना साहब में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम ने वॉरबर्टन बाईपास पर खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी तरजीह है। पोलियो मुहिम के दौरान 2,80,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 1,198 टीमें पोलियो के कतरे पिलाने का कौमी फराइज सर अंजाम देंगी। चीचावती में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वालिदैन पोलियो से बचाव के लिए अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के 2 कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि आपका बच्चा जिस्मानी माजूरी से बच सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावती वहीद हसन गोंदल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावती में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर THQ अस्पताल में पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। DDHO डॉक्टर वकार आसिम के मुताबिक पोलियो मुहिम 16 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ पूरा किया जाएगा। महकमा सेहत के अफसरान की निगरानी में पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। महकमा सेहत हुकाम ने वालिदैन से अपील की है, पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। पोलियो की बीमारी एक मूजी मर्ज है, इससे बचाव का वाहिद हल पोलियो वैक्सीनेशन के 2 कतरे हैं। हेड मराला के किसान लहसुन के नाजुक पौधों को मौसमी असरात से बचाने और लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए नित नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। और सैयद सिब्ते हसन की रिपोर्ट में मजीद देखेंगे। हेडमराला के किसान अपनी फसलों की देखभाल में हमेशा मुनफरद तरीके इख्तियार करते हैं। लहसुन की काश्त के दौरान वो फसल को घास उगने से रोकने और सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए चावल की फसल का बचा हुआ पवाल ज़मीन पर डाल देते हैं। ये मुनफरद तरीका न सिर्फ ज़मीन को सर्दी से बचाता है बल्कि ये मिट्टी की नमी को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होता है। इससे फसल को बेहतरीन गज़ाइयत मिलती है और जड़ों को मजबूत होने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ घास उगने के अमल को रोककर लहसुन की सेहतमंद नशोनुमा मुमकिन बनाई जाती है। जी, इसको हम इसलिए लगाते हैं कि घास जो है वो ना उगे यहाँ पर, और इससे जो है हमारा स्प्रे का ख़र्चा भी बच जाता है इस साइंसी और देसी तरीक़ा से। तो हमारे लहसुन की पैदावार जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये कुदरती तरीका किसानों को ज़्यादा खर्च से बचाता है और माहौलियाती तवाज़ुन को भी बरकरार रखकर लहसुन की पैदावार में भी इजाफा करता है। कैमरा टीम के साथ सैयद सिब्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमराला। फासिलपुर में 1 माह कबल टेंडर जारी होने के बावजूद हाजीपुर की कच्ची आबादी के मेन नाले का तामीराती काम ताहाल शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहर भर के गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से कच्चे मकानात मुनहदम हुए हैं। यहाँ पर सेवरेज की निकासी नहीं है, सेवरेज के आगे इंतज़ामात कोई भी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और वहीं जमा पानी हमारे मकानात को नुकसान देता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ से नुकसानात हुए हैं, बहुत सा नुकसान हो गया है। हम गरीब लोग हैं, हम रोज़ी रोटी करें बच्चों के फ्यूचर के लिए या कोई और क्या करें हम, आप बताएं। यहाँ साल साल से सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। यहाँ पर किसी सियासी नुमाइंदे ने कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ सीवरेज का पानी उल्टा घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे कई कच्चे मकानात मुनद्दम हो चुके हैं। बहावलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की मुबैना मिली भगत से शहर भर में नाजायज तजावजात की भरमार, बगैर हुकूमती इजाज़त के कमर्शियल बिल्डिंग्स की तामीरात और सीवरेज सिस्टम की तबाही के बाइस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं इंतहाई अफसोस से एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे बहावलपुर का टोटल इंतजामिया जो TMA के अंदर जो चीज़ आ रहा है तबाही के मामला में जा रहा है। सबसे पहले हमारी सेवरेज निज़ाम ऐसा धर्म भरम हुआ है कि हजारों लाखों लोग उसके ऊपर रोजाना के बीमार हो रहे हैं। आप अल्लाहबाद कॉलोनी चले जाएं, आप अब्बासिया टाउन चले जाएं, आप मजीदाबाद कॉलोनी चले जाएं, जहाँ जाकर देखें हजारों लोग वहाँ पर उनके साथ रास्ते में गुजरने की जगह नहीं है उनके पास।
पीर महल में एबीएन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। मोहल्ला इत्तफाक टाउन में लगे कूड़े क्रिकेट के ढेर की खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई और मोहल्ला से कूड़ा उठाकर साफ सुथरा कर दिया। स्कूल के बच्चों और मोहल्लादारों ने सुख का सांस लिया। हमारी इस गली में जगह जगह गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए थे और ये साथ बच्चों का स्कूल है और कूड़ा क्रिकेट की वजह से बच्चे बीमार हो रहे थे। इस जगह के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हुए थे, कूड़ा क्रिकेट की वजह से बीमारियां फूट रही थी। साथ में स्कूल है जिसके बच्चे बीमार होते, मोहल्ले के छोटे बच्चे भी मुख्तलिफ मौसमी बीमारी में मुब्तला थे। सर्दी की शिदत में इजाफे के बाद झंग में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा। ताहम कीमतें ज़्यादा होने के बायस शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात दरपेश। जंग रफ़ीक खान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही झंग में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। ताहम कीमतों में होश रुबा इजाफे की वजह से ड्राई फ्रूट की खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कम मिकदार में। शहरियों का कहना है कि जहां पिछले साल 1 किलो तक खरीदारी थी, जो महंगाई के बायस 1 पाव तक महदूद हो गई। ड्राई फ्रूट लेने आए थे, जो चीज़ भी लेते हैं, पिछले साल जिस चीज़ का रेट 1000 रुपया था 1200 था, अब इस दफ़ा वो 1500 की हुई भी है, 2000 की हुई है। जो 1500 की थी वो 2000 से भी ऊपर हुई भी है। अब पहले ये था कि चलो इंसान की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इंसान लेकर जाए, अब हर चीज़ महंगी हुई भी है। हुकूमत को चाहिए कि भाई रिलीफ दे ताकि गरीब इंसान भी कुछ खा पी सके। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई में इजाफे से इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। खरीदार रेट सुनने के बाद खरीदारी किए बगैर ही दुकान से निकल जाता है। मेवाजात से जहां सर्दी अहम सौगात हैं, वहीं इनसे तिब्बी फवायद भी हासिल होते हैं। रफीक खान, ABN न्यूज़, झंग। करोड़ लालीसन के इलाके फतेहपुर में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियां गंदे पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि जिला भर में सफाई मुहिम का आगाज तो किया गया, मगर सफाई का अमला गायब रहता है, जिसकी वजह से बर वक्त सफाई न होने पर अब शहर की गलियां गंदे तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बच्चों का स्कूल जाना और नमाजियों का मस्जिद तक जाना भी दुश्वार हो चुका। मुतालिका इंतजामिया को मुतादिद बार इसकी निशानदही की गई, मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। गंदगी की वजह से हमारा पीने का पानी भी आलूदा हो गया, जिसके बायस बच्चे और बड़े मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। सीवरेज होल्स के ढक्कन न होने की वजह से कई बार हादसात भी पेश आ चुके। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि इन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए। शाहजमाल और गिरदनवाह में अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता बेपना इजाफे से दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। शहर में सब्जियों, फलों, मुर्गी के गोश्त, अंडों, मछली और दीगर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया, जिससे दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशानी का शिकार है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम और दुकानदार अपने मनपसंद नरखों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा और छोटे दुकानदार आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंड शहर और गिरदनवाह में रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुतवसत तबके के लिए गोश्त तो दूर की बात, सब्जियां और दालें खरीदना भी मुश्किल। मजीद देखेंगे तनवीर अहमद की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह जंड शहर और गिरदनवाह में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। बढ़ती महंगाई के बायस बाजार सुनसान रहने लगे। आम आदमी के लिए गोश्त तो दूर की बात है, सब्जियां और दीगर रोजमर्रा अशिया खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इंतजामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। ज़्यादा हो गई है, हर एक चीज़ दिन पर दिन कीमतें बढ़दियाँ जा रही हैं। घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और दाला ने तुम देख लो, अखराजात बहुत ज़्यादा ने और आमदनी इतनी कम है, तो हुकूमत की दरख्वास्त है थोड़ा महंगाई से कंट्रोल करो। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, ABN न्यूज़, जंड, अटक। अहमदपुर शर्किया में यूनियन काउंसिल के तमाम दफ्तरी मामलात नायब कासिद के हवाले कर दिए गए। अहमदपुर शर्किया की यूनियन काउंसिल मेहराब वाला के सेक्रेटरी ताहिर कुरैशी ने यूनियन काउंसिल के तमाम दफ्तरी मामलात नायब कासिद के हवाले कर रखे हैं। वो महीने में 1 या 2 बार यूनियन काउंसिल आते हैं, जबकि नायब कासिद सारे मामलात चला रहा है। शहरियों को बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा और दीगर कागजात के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने यूनियन काउंसिल मेहराब वाला में मुस्तकिल सेक्रेटरी की तैनाती का मुतालबा कर दिया है। कश्मीरी सब्ज़ चाय अपनी लज्जत और रंगत में मुनफरिद होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने की वजह से सियालकोट के अवाम की पसंदीदा बन चुकी है। शहरी सब्ज़ चाय की ग़ज़ाइयत और लज्जत के बायस मौसम सरमा का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये चाय न सिर्फ जिस्म को गर्माई फराहम करती है, बल्कि इसमें मौजूद सेहत बख्श अज्जा मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं। सर्दियों में इस चाय का इस्तेमाल शहरियों की आदत बन चुका है। सर्दियों का तोहफा है चाय, सब चाय बनाते हैं बड़ी मुनफरिद अंदाज से, और मैं तो इनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, 4-5 साल से इनसे चाय पी रहा हूँ। बहुत टेस्टी होती है इनकी, और सर्दियों में
हम इनके पास ही आके बैठते हैं ज़्यादा। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से जो है ना इस मोरीगेट शॉप पे काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना ये चाय जो है ना हम पहले पुराने तरीके से बनाते थे, अब जो है ना लेटेस्ट जो है ना वो केटल जो है ना उसमें बनाते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट में जो है ना हम चाय बनाते हैं। तकरीबन मुझे 9 साल हो गए इनके पास आते हुए, और हर सीज़न में इनसे चाय पीते हैं, सर्दियों के सीज़न में, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, मुफीद होती है। काफ़ी सारी चीज़ें डाल के इनको बनाया जाता है, मेक किया जाता है, और मैं खुद भी पी के जाता हूँ इनसे और घर के लिए भी लेके जाता हूँ अपने। काली चाय से ये सब चाय बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे भी पीते हैं, लुत्फ़ हासिल करते हैं इस चाय से, और दुकान पे भी हम रोज़ाना लेके जाते हैं ये सब चाय। लकी मरवत में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में गवर्नमेंट शहीद मोहम्मद गुसान खान सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 में तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में तलबा ने अपनी तकरीरों में APS शहदा की कुर्बानियों का जिक्र किया और कहा कि दुश्मन इस बड़े सहने के जरिए कौम का आज़म मुतज़लज़ल कराना चाहता है, लेकिन वो नाकाम रहा और दहशत गर्दी के फ़िरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कौम आज भी मुतहद है। शहीद मोहम्मद गुसान खान बेगुखेल गाँव से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई तालीम लकी मरवत में हासिल की और बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। वो 8वीं जमात के तालिब इल्म थे जब 2014 में ये सानहा रोनमा हुआ और वो अपने साथी तलबा के हमरा शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। प्रिंसिपल शेर नवाज खान ने शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि कौम दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना खड़ी है। तलबा तालीम पर जोर दें और दुश्मन को शिकस्त दें। इस मौके पर APS शहदा के साल सवाब के कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआएं की गईं। ज़िला के दीगर सरकारी स्कूलों में भी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआ या तक़रीबात मुनाकिद की गईं। चारसदा के निजी स्कूल में शहदा APS के हवाले से ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया और शहदा के साले सवाब के लिए ख़त्मुल कुरान का भी एहतमाम किया गया। ABN न्यूज़ के साथ तलबा तालिबात ने अपने आज़म का इजहार करते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम भी दिए। आज 16 दिसंबर है, आज हम ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। FES स्कूल के तलबा को, जो हमारे बहन थे, जो हमारे भाई थे, उनको बेजा शहीद किया गया है। 16 दिसंबर पे APS के बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है, उन्हें बेजा शहीद किया गया। उनको उनकी असातिज़ाए कराम और बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया गया। वो जुल्म नहीं भूले, वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले। हम लोग अभी तक वो क़यामत नहीं भूले। 16 दिसंबर 2014 में जो सानहा पेश आया था, उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हमारे काफ़ी नौजवान थे वो शहीद हो चुके हैं, जिससे हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। अपर दीन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी श्रेंगल में असाज़ा के लिए 4 हफ्तों पर मुश्तमल ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। शहीद बीबी यूनिवर्सिटी श्रेंगल ने हायर एजुकेशन कमीशन HEC की नेशनल अकेडमी हायर एजुकेशन NAHE के ताउन से नेशनल आउटरीच प्रोग्राम बराए हायर एजुकेशन के तहत फैकल्टी मेंबरान के लिए 4 हफ्तों के तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में SBBU श्रेंगल के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद अब्दुल खालिक जान भी शरीक थे। पबी में अमानगढ़ पुल के मकाम पर मालबरदार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में खातून और बच्ची जान भाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने जख्मी को इब्तदाई इमदाद फराहम की और बाद में लाशों और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया। हादसे में जख्मी की शिनाख्त अटक के रहायशी 50 साला मोहम्मद अफजल के नाम से हुई। मानसहरा से बडग्राम जाने वाला कैरी डब्बा अछड़िया इंटरचेंज पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 4 शदीद जख्मी हैं। मानसहरा से जाने वाले कैरी डब्बा में 7 अफराद सवार थे। अछड़िया इंटरचेंज के करीब कैरी हादसे का शिकार होने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की एक की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 2 औरतें शामिल हैं। जख्मियों और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करा के इलाके बारना दाऊद शाह में पोलियो टीम पर हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक पोलियो टीम पर हमला शगरखेल के इलाके में किया गया। पुलिस एहलकार वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर था। वक़वा के बाद पुलिस की भारी नफरी जय वक़ा पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
दीरबाला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर वाड़ी साहबजादा अब्दुल कयूम ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि इलाके में हज़ारों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाकर पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने इस ज़मन में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कतरे पिलाने वाली टीमों को हिदायत जारी की कि इंतजामी के साथ मौसर राब्ते को यकीनी बनाएं और अगर किसी की तरफ से इनका मसाइल या इनकार दरपेश होता है तो इंतजामियों को फौरी बताया जाए। खानपुर डैम के हदूद में कार पार्किंग टैक्स वसूली के लिए खानपुर डैम इंतजामिया और टीएमए के दरमियान सर जंग। टीएमए इंतजामिया के खानपुर डैम साइड ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश। एक्जियन खानपुर डैम ने वापटा सिक्योरिटी के हिसार में टीएमए की ज़बरदस्ती कोशिश नाकाम बना दी। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर आयशा ताहिरा की टीएमए इंतजामिया के हमरा खानपुर डैम की हदूद में कार पार्किंग की साइट को खोलने के लिए खानपुर डैम की तरफ से मज़कूरा साइट पर डैम खाका की रुकावटों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश। एक्जियन खानपुर डैम सोहेब अब्बासी ने वाक़े की इत्तला मिलते ही एसडीओ खानपुर डैम नूर अहमद और वापटा सिक्योरिटी के हमरा कार पार्किंग साइट को ज़बरदस्ती की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई के हवाले से वापटा अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया। वापटा विफाक का इदारा है, इसकी जगह पर कोई इदारा एग्रीमेंट के बगैर टैक्स वसूली नहीं कर सकता। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर आयशा ताहिरा ने बताया, खानपुर में टैक्स वसूली का इख्तियार टीएमए खानपुर का है। टैक्स वसूली से तहसील भर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती काम किए जाते हैं। इस मौके पर टीएमए इंतजामिया ने कार पार्किंग खोलने के हवाले से कोई तहरीरी सबूत नहीं दिया, बल्कि कहा कि ज़बानी हिदायत है। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है किसी अदालत की भी। वो दूसरी बात है कि इनकी टेरिटरी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी है। यू ऑल पीपल नो कि खानपुर डैम वापटा ने कंस्ट्रक्ट किया और वापटा आज तक इसको जो है वो चला रहा है। ये जिस जगह पे ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, ये हमारा मेन मेड स्ट्रक्चर है। ये मलका वाला डाइक इसको बोलते हैं। डाइक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डैम का। इसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ये टीएमए जो है वो जिम्मेदार है। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी मालम जब्बा, जहां बर्फ पोश पहाड़ों, घने जंगलात और बर्फीले मनाज़िर ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। मंफी दर्जा हरारत में सयाह यहाँ न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बल्कि ज़िप लाइन, चेयर लिफ्ट और स्कीइंग जैसे खेलों का भी मज़ा ले रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं सवात से हयात चमन अपनी रिपोर्ट में। स्वात की हसीन वादी मलमजबा में हालिया बर्फबारी ने कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा दिए। खून जमा देने वाली सर्दी में स्कीइंग मुकाबलों ने लहू को गरमा दिया। यहाँ पर आके इतना एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। पर हम लोग आज स्कीइंग करने आए हैं, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है हम लोगों को और उस ट्रेनिंग से हम लोग ने भी स्कीइंग करके आए हैं। बहुत मज़ा आया है। प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आपको, प्रॉपर बताते हैं कि आपने कैसे करना है और किस तरह सारी चीज़ें मैनेज करनी है। बर्फ से ढके पहाड़ों ने ऐसी मंजर पेश किए जैसे सफेद चादर ओढ़ ली हो। सयाहों ने कुदरती मनाजर के साथ स्कीइंग मुकाबलों, जिप लाइन और चेयर लिफ्ट से खूब मजे लिए। हम यहाँ मालम जब आए हैं, हमने अभी स्कीइंग की है, इतने मज़े किए, आपको फुल गाइडेंस देते हैं, आपकी हाइट पूछते हैं, आपको फुल सिक्योरिटी के साथ आपको देते हैं। मैं अभी करके आई हूँ, इट्स द बेस्ट और बहुत मज़ा आ रहा है। मालम जबा में एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और 2-3 दफ़ा गिरा भी वहाँ पे, बहुत गंदा, लेकिन मज़ा आया। मालम जबा कुदरती हुस्न से मालामाल ये बर्फपोश वादी स्कीइंग, जिप लाइन, चेयर लिफ्ट और दीगर एडवेंचर खेलों के सहूलियात के साथ आने वाले सयाहों का इस्तेकबाल कर रही है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़ सवात। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद रुख करेंगे सिंध का। खैरपुर नाथन शाह में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे जाम भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुतवफ्फियों की शिनाख्त अख्तर बरोही और सारंग बरोही के नामों से हुई है। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को अपने तहवील में ले लिया। पुलिस की तरफ से मजीद कार्रवाई जारी है। नवाबशाह में जोखियो बरादरी के 2 ग्रुपों में मामूली तलखलामी पर तसादुम हुआ। लड़ाई में डंडों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, गोलियां भी चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिए, जिनमें 8 जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में PMU अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया गया। चाय वक़ा पर पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई। ठहरी मिरवाह के करीब सेठाराजा में आस्थाने पर मच कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। देखेंगे काशिफ अली बलोच की रिपोर्ट में।
1 दिसंबर सिंध की सकाफत का दिन पूरी सिंध में बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करके सारा महीना सिंधी शहरी अपनी सकाफत उजागर करते रहते हैं। सिटाजा के करीब अलगोसी आस्थाने पर मच कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मेहमानों और मुख्तलिफ फनकारों ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मकसद है कि जो इस्लाम में मेहमान नवाजी का बड़ा रुतबा है, वो अल्लाह के प्यारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने भी मेहमान नवाजी की। असहाबा सगोरा जो हमारे हजरत अली साईं शोदा करबला के जवान जो हैं वो भी मेहमान नवाज थे। तो इनका सुबह सिंध में बड़ा वजूद है। तो आज कल्चर डे समझो, सिंध की सकाफत उस पे ये लोग इकट्ठे हुए। ये जो सिंध की सकाफत है ये तकरीबन 5000 साल कबल मसीह से चली जा रही है। सिंध की आवाम इसकी पुरअमन ये जो सकाफती प्रोग्राम है इसी एहतजाजन तौर मना रही है। वो इसलिए कि जो ये सिंधु दरिया से कैनाल निकाले जा रहे हैं वो सिंध के लिए सिंध की तबाही के जिम्मेवार हैं। सिंध का आवाम मुतालबा करता है कि ये जो सिंधु दरिया से कैनाल निकाले जा रहे हैं इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगी। सिंध धरती के लोग मेहमान नवाज हैं और अपने सकाफत को उजागर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करके अपनी सकाफती विरसों और अपने तारीखी मकामात के बारे में बातचीत करते हैं, जिससे नौजवानों के इल्म में इजाफा होता है। कैमरा टीम के साथ काशिफ अली बलोच, ABN न्यूज़, ठरी मीरवा। मीरपुर माथेलो में ट्रॉलर का मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ भाग अफराद की शिनाख्त अला बख्श मेहर और उसामा मेहर के नामों से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील में ले लिया। नवाब शाह में रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी और PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सरबराही में इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर होने वाले इजलास की सरबराही आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुतासर कुन कारकर्दगी के हामिल इंसदाद पोलियो टीम के अरकान में तारुफी असनाद तकसीम की और बच्चों को पोलियो के खात्मे की वैक्सीन के कतरे पिलाए। सिंध में रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मकामी स्कूल में मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वालिदैन के ताउन के बगैर पोलियो के खात्मे का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आबिदा खान की रिपोर्ट में। भर में बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के मुहलिक वायरस से बचाना है। वज़ीर आला कहते हैं घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये पोलियो ड्राइव जो हम कर रहे हैं इसमें 1 करोड़ 6 लाख बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है हमारा पूरे सिंध में। मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से, सारे केयर गिवर्स से कि अपने बच्चों को ये पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, जिनसे इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस मोजी मर्ज से हमारे बच्चों को निजात मिलेगी। पोलियो मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें मजमूई तौर पर 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को हिफाजती टीकों का हदफ रखा गया। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची। और अब रुख करेंगे बलूचिस्तान का। चमन में पश्तून कबाइल सर्दियों में सदियों से एक मखसूस डिश लांदी का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। लांदी किस तरह तैयार की जाती है, मज़ीद तफसीलात जानेंगे हिदायतुल्लाह अचकसई की रिपोर्ट में। पाक अफगान सरहदी शहर चमन और दीगर मुल्हिका पश्तून अजला में आबाद पश्तून कबाइल हज़ारों बरस से मुनफरद सकाफती वर्सा के हामिल होने के साथ साथ मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला भी मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। मौसम सरमा की शिदत से बचने के लिए जहाँ लिबास और पोशाक में तब्दीली आती है, वहीं उनके खुराक के अंदाज भी बदल जाते हैं। शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए पश्तून कबाइल सदियों से दुम्बे के खुश गोश्त, जिसे मुकामी जबान में लांदी कहा जाता है, का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इसको हम लांदी कहते हैं। ये हम लोग सर्दियों में बनाते हैं। ये इसलिए हम बनाते हैं कि सर्दी से हम बचाव के लिए रखते हैं। बाज़ इलाकों में हम लोग इस तरह इसको रखते हैं कि सर्दी में बारिशें और बर्फबारी होती है तो रास्ते बंद होते हैं। सर्दियों में लांदी का शोरबा एक खसूसी खुराक समझा जाता है, जिसे हर उम्र के अफराद शौक से खाते हैं। सर्दी का इलाज अगर कोई चाहता है तो ये लांदी जब एक दफ़ा खाए तो उसको खुद ब खुद अंदाज़ा होता है कि सर्दी
कितना परसेंट कम हो गया या ज़्यादा हो गया। ये सर्दी का इलाज जो है यही लांदी है और इसका शौकीन बहुत सारे लोग हैं। पंजाबी लोग भी इसको खाते हैं, बलोच, पठान का तो असल ये चीज़ है। दुम्बे का ये खुश गोश्त न सिर्फ आला और मुनफरद कुदरती जायके का हामिल होता है, बल्कि इसमें इंसानी गजाई जरूरत को पूरा करने के लिए भरपूर गजाई अज्जा शामिल होते हैं जो इंसान को सर्दी का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। हिदायतुल्लाह चकजई, ABN न्यूज़, चमन। नसीराबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जहां ना बिजली है, ना पानी और ना ही चार दीवारी। खस्ता हाल इमारत के बाद तलबा तालिबात खौफ के आलम में मुब्तला हैं और पढ़ने पर मजबूर हैं। शेरियों का कहना था कि कई सालों से स्कूल में बिजली नहीं है और ना ही बच्चों के लिए पीने के पानी का कोई बंदोबस्त है। सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि पूरी इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। बारिशों के बाद स्कूल की छतों के पलस्तर वक्फे से गिर रहे हैं और बड़े बड़े पलस्तर के टुकड़े गिरने से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिससे असातिज़ा और तलबा को जानी नुकसान का खदशा भी है। स्कूल के तलबा और तालिबात ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर स्कूल की इमारत की मुरम्मत कराई जाए, बुनियादी सहूलतों की फरहमी और तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम भी किए जाएँ ताकि तलबा और तालिबात को मेयारी तालीम के मौके फराहम किए जा सकें। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। दीगर अजला की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, जो 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाए जाएं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान चौधरी से। जी इमरान, आगाह करें। जी बिल्कुल, दीगर इजला की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं और वालिदैन के लिए बिलखसूस क्या पैगाम है। आज कैंपेन का पहला दिन है और 76,656 बच्चे हमारा टारगेट हैं, जो कि 5 अयाम में हमने कवर करने हैं। तो मेरी वालिदैन से ये अपील है जी कि महकमा सेहत आमा के साथ तावन करें, टीमों के साथ, ताकि हर बच्चे तक पोलियो के कतरे पहुँच सकें, पोलियो के हवाले से वैक्सीनेट हो सकें। तो अगर बच्चे को कल चलना है तो फ़ैसला आपने आज करना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी को पोलियो हो गया तो सारी ज़िंदगी की माजूरी हो सकती है। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि अगर बच्चों ने कल चलना है तो वालिदैन को चाहिए कि वो फैसला आज करें, पोलियो के 2 कतरे पिलाकर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। जी। वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने इस्लामगढ़ का दौरा किया। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की 1.5 साल कारकर्दगी सबके सामने है, आवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने इस्लामगढ़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, हमारी 1.5 साल कारकर्दगी सबके सामने है। मुश्किल हालात के बावजूद हमने अवाम को रिलीफ फराहम किया, सस्ती बिजली और सस्ते आटे जैसा तारीखी रिलीफ पैकेज दिया गया। महकमे तालीम में मेरिट पर 3,000 तैनातियाँ की गईं और तारीखी हेल्थ पैकेज के जरिए अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गईं। इस मौके पर सीनियर सियासतदान चौधरी तालिब हुसैन ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली।